ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ گڈاپ ٹاؤن میں جدید واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا افتتاح میئر کراچی مرتضی وہاب نے کر دیا۔ مضافاتی علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے دریا خان گبول گوٹ گڈاپ ٹاؤن میں بلدیہ عظمی کراچی کے زیر انتظام تیار کیے گئے سولر سسٹم سے چلنے والی جدید واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا افتتاح لیڈر کرم اللہ وقاصی، گڈاپ ٹاؤن کے یو سی چیئرمین مبارک گبول، سٹی کونسل کے اراکین، منتخب نمائندے، معزز علاقے کی بڑی تعداد موجود تھی۔ میئر کراچی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جدید آر او پلانٹ کی تکمیل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے عوامی فلاح ویژن کی واضح مثال ہے۔ پیپلز پارٹی شہر میں ایسے منصوبے مکمل کر رہی ہے جن کا براہ راست فائدہ شہریوں کو پہنچے گا۔ یہ پلانٹ زیر زمین پانی کو جدید ٹیکنالوجی سے صاف کر کے قابل استعمال بنائے گا، جس سے رہائشی علاقوں میں صاف پانی کی مسلسل باقاعدہ اور معیاری فراہمی یقینی ہو سکے گی۔ اس پلانٹ میں واٹر اسٹوریج کی گنجائش بھی یومیہ 10,000 گیلن کی ہے۔ میئر کراچی نے کہا یہ پہلا آر او پلانٹ ہے جسے گڈاپ میں گھروں پر لائن کے ذریعے پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فعال کر دیا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف آر او پلانٹ کے ارد گرد کے علاقوں میں پانی فراہم کیا جا رہا ہے بلکہ دیہات کی مختلف گلیوں میں 15 مقامات پر پانی کی لائنیں بھی بچھا دی گئی ہیں جس سے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید 20 آر او پلانٹس کراچی کے مختلف دیہات میں نصب کیے جائیں گے تاکہ شہریوں کو معیاری اور مسلسل پانی کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ میئر کراچی نے کہا کہ سولر سسٹم سے چلنے والا آر او پلانٹ کم توانائی خرچ کرتا ہے، کم لاگت اور پائیدار ماحول دوست حل فراہم کرتا ہے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ کماڑی کے علاقے گریکس میں بھی آر او پلانٹ قائم کیا گیا تھا اور اب شہر کے مضافاتی علاقوں میں اسی نوعیت کے مزید منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ پورے شہر میں یکساں معیار کی سہولیات فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کو جدید اور ماحول دوست شہر بنانے کے لیے ماحولیات کی بہتری اور گرین ہاؤس گیسوں میں کمی کے بڑے بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن میں واٹر سسٹم کی سولرائزیشن ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے میں استعمال ہونے والا فلٹریشن سسٹم جدید ترین عالمی ماحولیاتی اصولوں کے مطابق تیار کیا گیا ہے جو پانی کی کوالٹی کو بہتر بنانے اور آلودگیوں کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوگا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ یہ منصوبہ شہریوں کی صحت مند ماحول کے تحفظ اور صاف پانی کی دستیابی کے لیے نہایت اہم کردار ادا کرے گا۔ پانی کا مؤثر استعمال، اس کے ضیاع کی روک تھام اور جدید انفراسٹرکچر کی تکمیل بلدیہ عظمی کراچی کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ شہر میں پینے کے صاف پانی کے منصوبوں کی رفتار میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ شہری سہولیات کے منصوبے وقت پر مکمل کرنا اولین ترجیح ہے۔ میئر کراچی نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بدولت کراچی کو جدید پائیدار ماحول دوست شہر بنایا جا رہا ہے۔ عوامی ضروریات کے مطابق سہولیات پہنچانا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اور ہم اس مشن پر بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ضلع وسطی میں سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین نے ڈپٹی کمشنر وسطی طاہا سلیم اور ایس ایس پی سینٹرل ذیشان شفیق کے ہمراہ پہلے ماڈل تھانے کا افتتاح کر دیا۔ تھانہ حیدری اور نارتھ ناظم آباد میں قائم کیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تھانہ کلچر میں انقلابی تبدیلی کا آغاز، جدید سہولیات سے آراستہ پہلا ماڈل تھانہ فعال ہو گیا۔ ماڈل تھانے کا افتتاح پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین نے ڈپٹی کمشنر وسطی طاہا سلیم اور ایس ایس پی وسطی ذیشان صدیقی کے ہمراہ کر دیا۔ ڈاکٹر عاصم نے کہا شہری اب اچھے ماحول میں اپنی شکایات بلا خوف و خطر درج کروا سکتے ہیں۔ ماڈل تھانے میں جدید سی سی ٹی وی کنٹرول روم کٹی پہاڑی، نیو کراچی اور نارتھ ناظم آباد کے تمام علاقوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، جبکہ کمپیوٹرائزڈ ایف آئی آر سسٹم شہریوں کے لیے جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر وسطی طلحہ سلیم نے کہا ماڈل تھانے کا جدید ایمنس کسی ملٹی نیشنل ادارے جیسا ماحول فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری سہولت اور پروفیشنل ماحول اس ماڈل تھانے کی نمایاں خصوصیت ہے۔ ایس ایس پی ذیشان شفیق نے کہا ماڈل تھانے میں جدید طرز پر تعمیر شہریوں کو پکنگ اسٹائل ٹوکن سسٹم فراہم کیا جائے گا۔ خواتین سائلن کے لیے تھانے میں علیحدہ سیکشن قائم کیا گیا ہے۔ ماڈل تھانے میں آرام دہ لاؤنج، انفارمیشن ڈیسک اور بااخلاق اسٹاف تعینات کیا گیا ہے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی وسطی کے صدر سردار خان، نائب صدر نیاز خان اور توقیر احمد نے بھی شرکت کی۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر ارشد ووہرا کو وفاق کی جانب سے ملنے والے فنڈ سے انفراسٹرکچر کی بہتری کا کام کیا جا رہا ہے۔ رام سوامی اور رنجھوڑ لائن میں سیوریج لائن کی تنصیب کا کام جاری ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حلقہ این 240 سے منتخب رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر ارشد عبداللہ ووہرا کی محنت رنگ لے آئی۔ وفاق کے ماتحت پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کے ذریعے کروائے جانے والے ترقیاتی کام تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہیں۔ یو سی نمبر 4 میر ایوب خان روڈ رام سوامی پر بھی ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں سیوریج لائن کی تبدیلی کا کام جاری ہے اور 18 انچ کے
नए पाइप नस्ब किए जा रहे हैं। माजी में 9 इंच के सेवरेज पाइपलाइन से इलाका शदीद मुतासिर रहता था, क्योंकि 9 इंच की लाइन इलाके की आबादी के लिहाज से नाकाफी थी। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर अरशद अब्दुल्ला वोहरा का कहना है कि जिन गलियों में काम मुकम्मल हो जाएगा वहाँ पेवर ब्लॉक्स लगाए जाएंगे, जिससे सड़क खूबसूरत लगेगी। उन्होंने कहा, मेरी पूरी टीम बेहतरीन काम कर रही है और ज्यादा से ज्यादा अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी जिला गरबी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में रैली निकाली गई, जिसमें औरंगी टाउन के चेयरमैन जमील ज़िया और मंगूपी टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज बरोही समेत मुकामी रहनुमा और कारकुनान शरीक हुए। रैली के अख्ताम पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पीपल्स पार्टी की जानिब से एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली में हजारों कारकुनान ने शिरकत की। रैली औरंगी टाउन 5 नंबर पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़िया ने कहा, पीपल्स पार्टी का जलसा जरूर कामयाब होगा और जलसे में जियाले खूब जश्न मनाएंगे। टाउन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टीएमसी औरंगी, इस वक्त हम औरंगी टाउन 4:45 पे जो है UC8 की जानिब से हमारे जो यहाँ के जिम्मेदार हैं कारकुनान, उन्होंने कैंप लगाया हुआ है। आज ये रैली जो है हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 58 योम तासीस के हवाले से जो है हमने जो मुनक्कद किया, उस हवाले से ये हमने रैली निकाला है, क्योंकि हमारा 58 योम तासीस हमारा जो है ये बहुत ही अहम दिन है और हमारा फाउंडेशन डे है हमारा ये 58, और इसमें हम जो है पीपल्स पार्टी के जियाले तमाम कारकुनान जिम्मेदार जो है हम वो शान शान तरीके से मनाते हैं। और कल 30 नवंबर को औरंगी टाउन से हजारों की तादाद में कारकुनान जो है वो 58 योम तासीस के जो हमारा जलसा है औरंगी में, वहाँ इंशाल्लाह ताला हजारों कारकुन जो है रैली में पहुंचेंगे और अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ अपना हम जो है फाउंडेशन डे जो 58 मनाएंगे। मंगोपी टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज बरोही ने कहा, रैली का मकसद लोगों को कल के जलसे की दावत देना है। मरकजी जलसे में कारकुनान के साथ अवाम भी मौजूद होगी। मैं हमारे यहाँ दिल अजीज का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब और पूरे पाकिस्तान के जियालों को, अपनी क़यादत को और दुनिया में बसने वाले जियाले और जियालियों को अपने योम तासीस पे पार्टी के जन्मदिन पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। रैली के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। जिला मलीर PS 86 के सदर और चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नज़ीर भुट्टो ने पार्टी के यौम तासीस की तैयारियां मुकम्मल कर ली। इजलास के दौरान प्रोग्राम में शिरकत का लाहेअमल तय कर लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 86 जिला मलीर के सदर टाउन चेयरमैन इब्राहिम हैदरी नज़ीर अहमद भुट्टो की सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 98वें यौम तासीस के हवाले से यूसी चौकंडी का इजलास शफी बलोच कोर्ट में मुनक्किद हुआ, जिसमें PS 86 के सदर नज़ीर अहमद भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा कि 30 सितंबर को कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद रखकर मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद रखी, मुल्क को आइन दिया, आवाम को वोट का हक दिया और मुल्क को एटमी ताकत बनाया। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने नाना के नक्शे कदम पर चलते हुए आवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि कारकुन और पार्टी का ससा है, याद रखें ताकत का सरचश्मा अवाम है। नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि यौम तासीस में बड़ी तादाद में कारकुन और जियाले शरीक होंगे। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वीडियो लिंक के जरिए खिताब सुनेंगे। PS 86 मलीर से हजारों कारकुनों का काफिला अपने महबूब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खिताब सुनने और यौम तासीस की तकरीब में शरीक होगा। इजलास में जनरल सेक्रेटरी जाहिद बलोच, नायब सदर चौधरी खलील टाउन मेंबर मोहम्मद हाशिम लाशारी, सीनियर रहनुमा अब्दुल गनी गबूल, सीनियर रहनुमा जाम जमील लाशारी, हसन कोलाची, मोहम्मद शरीफ उल मारूफ, बाबा फौजी हुसैन बलोच, अब्दुल वाहिद अकील कोलाची और दीगर अहदेदारान और कारकुनान भी शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का जश्न मनाने के लिए चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने जाफर तैयार में पार्टी कारकुनान से मुलाकातें की और अवामी राब्ते को मजीद बढ़ाने की हिदायत की, ताकि जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा अवाम मौजूद हो। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर जिला मलीर PS 179 पीपल्स पार्टी व चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने पीपल्स पार्टी का यौम तासीस शानदार तरीके से मनाने के लिए जाफर तैयार सोसाइटी UC नंबर 3 का रुख किया, जहां उन्होंने पार्टी कारकुनान से मुलाकातें की और उनसे तजावीज़ ली। टाउन चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा, कल जश्न का दिन है, कोरंगी ग्राउंड में लाखों का मजमा होगा और हर जबान पर जिए भुट्टो का नारा होगा। उन्होंने कहा, मलीर टाउन पीपल्स पार्टी का जियालों का टाउन है, जहाँ तरक्याती काम भरपूर अंदाज में हो रहे हैं। उन्होंने कारकुनान को हिदायत की कि जलसा गामा मलीर टाउन की
ज़्यादा से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत मौजूद हो ताकि मलिक का नाम रोशन हो सके। उन्होंने कहा हर कारकुन अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सुनने के लिए बेताब है। मंगोपी टाउन की जानिब से 58वें यौम तासीस के हवाले से रमज़ान गोट में तकरीब का इनेकाद किया गया। टाउन चेयरमैन ने पार्टी जियारों से मरकजी जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत करवाने पर जोर दिया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मंगोपी टाउन की जानिब से 58वें यौम तासीस के हवाले से रमजान गोठ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेबर यूनियन के तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। यौम तासीस के हवाले से चेयरमैन हाजी नवाज बरोही ने केक काटा और खिताब भी किया। कि कल जो कराची में जलसा होने जा रहा है, मैं समझता हूँ ये एक तारीखी खिताब करेंगे चेयरमैन साहब, उसके लिए हम भरपूर तादाद में वहाँ शिरकत करेंगे और इस जलसे के तवज्जुह से हम पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में ये पैगाम देंगे कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को देखते हुए और पाकिस्तान चेयरमैन साहब की जो पाकिस्तान के लिए एफर्ट्स देखते हुए जो लोगों को परेशानी है, उसका जो है हल एक ही है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान का अज़म और पाकिस्तान का जो है सालमियत, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और आने वाले हमारे मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म का हम पैगाम देंगे कल कि बिलावल भुट्टो साहब हमारे मुस्तकबिल के आने वाले वज़ीर आज़म होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। तकरीब में मौजूद मुकामी रहनुमाओं ने भी कारकुनान से अपील की कि वो अवामी राब्ता बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा जलसे में शिरकत करें। जैसे भुट्टो साहब ने एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो आपके सामने बड़ा दरख्त उजागर होकर ये तंजीम चली है। बस इस मौके पर यही दरख्वास्त करूँगा तमाम जियालों से कि कल का जलसा इंशाल्लाह कामयाब करें आप लोग। 30 नवंबर को हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जो रखा गया था, कल उनको 58 साल होने वाले हैं और इस खुशी में आज हमने केक काटा है। कल इंशाल्लाह एक भरपूर तरीके से एक जलसा कराची कोरंगी में होने जा रहा है। यौम तासीस के हवाले से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जियालों और जियालियों को, कारकुनों को गुजारिश करता हूँ कि कल इंशाल्लाह जिस तरह के हम अपने आप को खुशनसीब कहते हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये गरीबों की पार्टी है, इंशाअल्लाह कल के जलसे में हम भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। इस मौके पर कारकुनान ने पीपल्स पार्टी के मरकजी जलसे के हवाले से अपनी तजावीज़ भी पेश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में अपना 58वां यौम तासीस जोश और जज्बे से मना रही है। निस्फ सदी से ज़ायद का अरसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कैसा गुजरा, जानेंगे मुजम्मिल यासीन की इस रिपोर्ट में। जुल्फ़कार अली भुट्टो की क़यादत में कायम होने वाली पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तानी सियासत में निस्फ सदी से ज़ायद अरसे तक नुमायां किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी ने मुल्क की तारीख में जमहूरियत की बहाली, सियासी जिद्दोजहद और अवाम की बुनियादी हकूक के लिए पाकिस्तान की सियासत में तारीखी किरदार अदा किया। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को जब उस वक्त के डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने फांसी दिलवाई, उसके बाद उनकी दुख्तर बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जवानी में न सिर्फ अपनी जमात को संभाला बल्कि पाकिस्तान की तारीख में पहली खातून वज़ीर आज़म भी मुंतखब हुई, जिसके बाद 2 मरतबा उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। फिर मोहतरमा मुज़ाहमत करती रही, लेकिन कुछ नामालूम कुव्वतों ने मुश्किलात पैदा करके जिला वतनी मुमकिन बना दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के रहनुमा व चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने असम्बली में करारदाद भी पेश की और पीपल्स पार्टी के कायदीन को खराज अकीदत भी पेश किया। मैं रेजोल्यूशन ही पढ़ लेता हूँ सर। Whereas this house on the occasion of the 58th foundation day of Pakistan People's Party pays rich tribute to the party's founder and former Prime Minister of Pakistan, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, and to Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto, who rendered the ultimate sacrifice for the cause of the people, democracy, and democratic values in the country. करारदाद पर गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह ने पीपल्स पार्टी की तारीख पर सिंध असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की सियासी जिद्दोजहद को कभी सियासत से ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब से ये पार्टी बनी है मैं उसका मेंबर हूँ और इसलिए 58 साल की हिस्ट्री है कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और उनके कारनामे, उनकी जद्दोजहद, उनकी कुर्बानियाँ, जेल, कोड़े, बहुत सी बातें हैं जो मैं कह सकता हूँ।
मुल्क भर में मुनक़द होने वाली तकरीबात में कारकुनों ने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। मुल्क भर में जलसों, रैलियों और पार्टी कन्वेंशंस का इनेकाद जारी है, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि पीपल्स पार्टी का फलसफा आज भी वफाक की मजबूती और अवामी खिदमत पर मबनी है। मुल्क के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइंदा हिकमत अमली मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा कर सकती है, खसूसन ऐसे वक्त में जब मुल्क मुआशी और सियासी चैलेंजेस से गुजर रहा है। मुज़म्मिल यासीन, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एम्बुलेंस को रास्ता देना हर शहरी की अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है। हमने मेन फील्ड स्ट्रीट सदर में शहर की पहली एम्बुलेंस लाइन कायम करके एक अहम कदम उठाया है। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि आवाम साथ दे तो टाउन में मजीद बेहतरी आएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख की जानिब से डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद खोसा और DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के भरपूर इश्तराक से सदर में मेन फील्ड स्ट्रीट पर शहर की पहली एम्बुलेंस लाइन कायम कर दी गई है। इस इकदाम का मकसद ट्रैफिक के दबाव के बावजूद इमरजेंसी खदमात खसूसन एम्बुलेंसों को बर वक्त रास्ता फराहम करना है ताकि मरीजों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। सदर टाउन के चेयरमैन मंसूर अहमद शेख ने कहा, एम्बुलेंस को रास्ता देना हर शहरी की अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है। हमने शहर की पहली एम्बुलेंस लाइन कायम करके एक अहम कदम उठाया है। उम्मीद है कि आवाम और ट्रैफिक पुलिस इस निजाम को कामयाब बनाने में भरपूर ताउन करेंगे। सदर टाउन इंतजामिया शहरियों की सहूलत के लिए मजीद ऐसे इकदाम करती रहेगी। प्रिंसिपल कमिश्नर सदर टाउन फहद अब्बासी ने कहा कि एम्बुलेंस लाइन का कयाम वक्त ही अहम जरूरत था। हमें ऐसे अमली इकदाम करने होंगे जिनसे इंसानी जानें बचाई जा सके। इंतजामिया की भरपूर मावनत जारी रहेगी और हम इस मंसूबे को दीगर अहम इलाकों तक तोसी देने पर भी गौर कर रहे हैं। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस एम्बुलेंस लाइन को मौसर बनाने के लिए खुसूसी इकदाम करेगी और शहरियों को आगाही भी दी जाएगी कि वो इस मखसूस लाइन को हरगिज ब्लॉक ना करें। हमारा हदफ हंगामी सूरत हाल में एक भी कीमती जान जाया ना होने देना है। आखिर में चेयरमैन सदर टाउन ने कहा कि सदर टाउन इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर साउथ और ट्रैफिक पुलिस बाहमी ताउन से शहरी सहूलत के मजीद मंसूबों पर काम कर रहे हैं और जल्द मजीद इकदाम का ऐलान भी किया जाएगा। इस मौके पर वाइस चेयरमैन सदर टाउन अब्दुर्रहमान मोतीवाला, म्यूनिसिपल कमिश्नर सदर टाउन मार्केट के अहदेदारान और दीगर महकमा जाती अफसरान भी मौजूद थे। गुलबर्ग टाउन में असातिज़ा की तरबियत का सिलसिला जारी है। जामिया कराची की प्रोफेसर नाजिश को खिदमात के इतराफ़ में शील्ड पेश की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुलबर्ग टाउन में असातिज़ा की पेशा वराना तरबियत के सिलसिले का कामयाबी से निकात जारी है, जिसके तहत मुख्तलिफ मज़ामीन के मुताबिक तरबियती सेशन शानदार तरीके से मुकम्मल किए जा चुके हैं। हाल ही में केमिस्ट्री के मजमून की तरबियत मुकम्मल होने पर एजुकेशन कमेटी की रुकन मोहतरमा ताहिरा कामरान और डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन मोहतरमा आयशा ने जामिया कराची की प्रोफेसर नाजिश को इनकी आला कारकर्दगी और मुसलसल ताउन के एतराफ़ में यादगारी शील्ड पेश की। प्रोफेसर नाजिश ने असातिज़ा के लिए कई मौसर, जदीद और नतीजा खेज तरबियती नशिस्तें मुनक्किद किए, जिनका मकसद तदरीसी मेयार को बेहतर बनाना, जदीद साइंसी तरीका तदरीस से आगाही फराहम करना और असातिज़ा को अमली महारतों से लेस करना था। तरबियत में शामिल असातिज़ा ने सेशंस को निहायत मुफीद मालूमाती और अमली तदरीस के लिए मददगार करार दिया। गुलबर्ग टाउन में जमात इस्लामी की क़यादत ने सेहत और तालीम के शोबों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रखी और ये तरबियती प्रोग्राम इसी विजन की अमली मिसाल है। गुलबर्ग टाउन में जारी ये तालीमी सरगर्मियाँ न सिर्फ सरकारी स्कूलों के मेयार में बेहतरी लाएंगे बल्कि गुलबर्ग की तालीमी कारकर्दगी पर भी मुस्बत असरात मुरत्तिब करेंगे। इंतजामिया का कहना है कि मुस्तकबिल में मजीद मज़ामीन की तरबियत, जदीद वर्कशॉप और तदरीसी बेहतरी के नए प्रोग्राम भी शुरू किए जाएं ताकि असातिज़ा की पेशावराना तरक्की का सिलसिला बरकरार है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मॉडल कॉलोनी की जानिब से मलीर हॉल ता सऊदाबाद रेलवे ट्रैक रोड की असर नौ तामीर का संग बुनियाद रख दिया गया। अमीर जमात इस्लामी मनम जफर खान ने शहरियों को बड़े मंसूबों की भी खुशखबरी सुना दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मलीर हॉल ता सऊदाबाद रेलवे ट्रैक रोड की असर नौ तामीर का संग बुनियाद अमीर जमात इस्लामी मनम जफर और टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान ने रख दिया। शाहरा की असर नौ तामीर से मॉडल कॉलोनी टाउन की 9 यूसीज को फायदा हासिल होगा और सफरी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी मनम जफर ने कहा, नियत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। एयर कराची ने कोई मदद नहीं की। जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं वो टाउन चेयरमैन अपने टाउन से करवा रहे हैं, जो कि गुड गवर्नेंस का भी सबूत है। मलीर के रहने वालों के लिए मॉडल टाउन की जानिब से उस वादे की तकमील की जानिब एक पेशरफ्त है कि जो वादा हमने किया था कि अपने इख्तियार और अपने जो वसाइल हैं उन वसाइल के अंदर
बल्कि उससे बढ़कर शहर कराची के लोगों की खिदमत करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सड़क का आज जो संग बुनियाद रखा गया है, इसकी जो तकरीब यहाँ मुनक्किद की गई है, ये मलीर हॉल्ट से लेकर सऊदाबाद तक 3.5 किलोमीटर सड़क है और ये सड़क ऑल्टरनेट रूट है, मुतबादिल रास्ता है इलाके के लोगों के लिए जो पहले ही बहुत परेशान हैं। और परेशानी की बड़ी वजह क्या है कि मलीर हॉल्ट से लेकर टैंक चौक तक की जो रोड है वो तबाह हाल है, जिसको केएमसी ने बनाना था MM आलम रोड। ये MM आलम रोड जिसको केएमसी ने बनाना था, लेकिन केएमसी आज तक उसके काम को मुकम्मल तो क्या करते, अभी पूरी तरह काम शुरू भी नहीं हुआ। जहां वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का मसला है, इसी तरह शहर कराची में जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, टूटी सड़कें हैं, बहते गटर हैं, ऐसी सूरत हाल में अल्हम्दुलिल्लाह इस शायरा की तकरीब का इस इनेकाद, इस शायरा की संग बुनियाद रखना ये तोहफा भी है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि ये काम 6 महीने कहे गए हैं, लेकिन ये काम बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक मुकम्मल होगा। टाउन चेयरमैन मॉडल कॉलोनी जफर अहमद खान ने भी तरक्याती मंसूबों पर खुलकर बात की और मुखालफिन को किबला दुरुस्त करने का कह डाला। ये 3.5 किलोमीटर तवील शाहरा है और ये हमने इस पे क्लिक को प्रपोजल्स दिए थे जब उन्होंने लिए थे हमसे, और ये काम बेसिकली 23-24 का काम है जो पेंडिंग हो गया था किसी भी वजह से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका संग बुनियाद रख दिया गया है और इंशाल्लाह ताला ये अपने टाइम फ्रेम में 30 मार्च इसकी हमने डेट रखी है और 30 मार्च तक इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट करेंगे और इससे हमारी तकरीबन 6 यूसियाँ इस्तिफादा हासिल करेंगी, क्योंकि इस वक्त एक हमारे पास काला बोर्ड था, सऊदाबाद एक ही रोड अवेलेबल था जो किसी भी इवेंट की वजह से और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से 5 दफ़ा उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्स हो जाती थी, और उसके साथ साथ लियाकत अली खान रोड भी अब तामीर हो गया है, लेकिन जिना एवेन्यू का हाल आप तमाम लोगों को पता है और वो इंशाल्लाह ताला वो भी जब तामीर की तरफ जाएगी तो जब सहूलत होगी उसके लिए नैमुल बदल के तौर पर ये रोड जो 3.5 किलोमीटर तवील है इंशाल्लाह ताला अपने काम का आज आगाज़ हो गया है और ये अपने टाइम फ्रेम में इंशाल्लाह कंप्लीट भी होगा। शुक्रिया। तकरीब में जमात इस्लामी की मकामी क़यादत, टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मॉडल कॉलोनी के मेंबरान कौंसिल समेत दीगर कारोबारी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन मंसूर बनारसी के साथ जुनेद जावेद, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मोरो मीर बहर के मरकजी दफ्तर में पीपल्स लेबर ब्यूरो ने शानदार पंडाल सजा दिया। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से कारकुनान और रहनुमाओं समेत बल्दियाती नुमाइंदों ने प्लानिंग की। पीपल्स पार्टी के मुकामी क़यादत और टाउन चेयरमैन अली अकबर ने यौम तासीस की तकरीब में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत करवाने के अज़म का इजहार किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कमारी पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन का मोरो मीर बहर टाउन में यौम तासीस के हवाले से एक शानदार, पुरवकार और तारीखी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया ताकि यौम तासीस की तमाम तैयारियों को बर वक्त और बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल किया जा सके। लेबर ब्यूरो के रहनुमाओं ने कहा कि हमारी यूनियन की शान और नज़्म ज़ब्त की बेहतरीन मिसाल हो गया है। आए मिलकर अपने यौम तासीस को कामयाब और यादगार बनाए। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 114 के सदर इकबाल बलोच, जिला कमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी इफ्तिखार हुसैन शाह, चेयरमैन मोरो मीर बहर टाउन अली अकबर शरीक हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 58वीं यौम तासीस की तैयारियों के हवाले से प्रोग्राम तश्कील दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस हमारे लिए खुशी और फख्र का दिन है। 30 नवंबर 1967 वो तारीखी दिन है जब कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अवामी सियासत का वो अजीम सफर शुरू किया जिसने पाकिस्तान की सियासी तारीख को बदल दिया। हम सब वर्कर्स अपनी गलियों, घरों, दफातर और गाड़ियों को पार्टी के झंडों से सजाकर दुनिया को ये पैगाम दें कि पीपल्स पार्टी महज एक सियासी जमात नहीं बल्कि हर फोरम पर अवाम के हुकूक की अलमबरदार और पाकिस्तान की असल जमहूरी आवाज है। इख्तिताम इस अज़म के साथ हुआ कि PS 114 के सदर इकबाल बलोच की सरबराही में यौम तासीस पर अपनी भरपूर कुव्वत, नज़्म ज़ब्त और रिवायती जोश व जज्बे के साथ पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। इस मौके पर टाउन चेयरमैन अली अकबर ने कहा कि तमाम जयाले पुरजोश हैं, हमें बेसब्री से जलसे वाले दिन का इंतजार है जिस दिन हर तरफ खुशियाँ होंगी, पार्टी परचमों की बहार होंगी। उन्होंने कहा तमाम लोग मुत्तहिद रहें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में जलसा गाह का रुख करें। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस का केक भी काटा गया।
सफूरा टाउन काउंसिल का 10वां इजलास टाउन ऑफिस में मुनक़िद हुआ, जिसमें 9 करारदादें मंजूर कर ली गई। मुलाजमीन की तरक्कियों के लिए DPC कायम करने की करारदाद भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। तरक्याती कामों समेत बल्दियाती खिदमात की फराहमी के लिए मिशनरी की करारदादें भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखेली की सदारत में टाउन काउंसिल सफूरा का 10वां इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच, अपोजिशन लीडर सिकंदर अली बलोच, अरकान काउंसिल शमीम सिद्दीकी, सायरा सज्जाद, इलियास कबूल, सुमार गाबा, अमरोज इमाम, जहरिश खानजादी, करामत डोंडा, अरशद सिकंदर, अदनान जावेद, सादिक आवाम ने शिरकत की। इजलास में 9 करारदादें मंजूर की गयी, जिसमें गुज़िश्ता इजलास की रौदात की तौसीक की गयी। मुलाजमीन की तरक्कियों के लिए DPC कायम करने, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने, अरकान काउंसिल की जानिब से फराहम करदा तरक्याती कामों की मंजूरी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बारोजगार बनाने के हवाले से हिकमत अमली तय करने की भी मंजूरी ली गई। मुलाजमीन को सिंध हुकूमत की जानिब से बढ़ाई जाने वाली तनख्वाह अदा करने के लिए और मसावियाना बुनियाद पर हर यूसी में तरक्याती काम करवाने के लिए भी बातचीत की गई। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह से सड़कों का नेटवर्क दुरुस्त करने या फंड्स फराहम करने और बल्दियाती खिदमात की फराहमी के लिए मशीनरी की तादाद बढ़ाने की करारदादें भी मंजूर की गई। एक करारदाद अक्सरियत राय और बकाया 8 करारदादें मुनफका तौर पर मंजूर हुई। इजलास में टाउन की बेहतरी के हवाले से अरकान काउंसिल की आरा भी हासिल की गई। अपोजिशन लीडर सिकंदर अली बलोच ने इस हवाले से कहा कि इससे कबल भी राय दी गई है, अगर इन पर अमल दरामद कर लिया जाए तो टाउन बेहतर से बेहतरीन सिमत में रवान दवा होगा। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखेली ने इजलास के इख्तिताम में बातचीत करते हुए कहा कि आज का इजलास इंतहाई खुशअस्लूबी से सर अंजाम पाया है। अरकान काउंसिल की टाउन की बेहतरी के लिए दी गई तजावीज को अहमियत देते हैं और आज और इससे कबल आरा दी गई, इन पर अमल दरामद करेंगे। सफूरा टाउन की तरक्की के लिए तमाम अरकान को साथ लेकर चलेंगे और कोशिश होगी कि मसावियाना बुनियाद पर हर यूसी में मुख्तलिफ तरक्याती काम सर अंजाम दिए जाएं। इसकी अमली मिसाल ये है कि आज के इजलास में बल्दियाती खिदमात की फरहमी के लिए मशीनरी की खरीदारी की करारदाद मुनफका तौर पर मंजूर की गई है, जिससे यकीनी तौर पर बेहतरी आएगी। चाहते हैं कि हर यूनियन काउंसिल को फ्यूमिगेशन मशीनें फराहम कर दी जाएं ताकि मुज़र जरासीम के खात्मे के लिए यूसीज अपने तौर पर फराइज सर अंजाम दे सकें। फंड्स दस्तियाब हुए तो हर यूसी को दीगर मशीनरीज भी फराहम करेंगे। इन्होंने अरकान काउंसिल से कहा कि वो सफूरा टाउन की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें, मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करेंगे, लेकिन तनकीद बराए तनकीद दुरुस्त नहीं है। हर यूसी में रोजमर्रा बल्दियाती खिदमात की फरहमी में किसी यूसी के साथ ज्यादती नहीं की जा रही है। इन्होंने ऐलान किया कि जनवरी 2026 से तजावुजात फ्री टाउन के नाम से मुहिम का भरपूर आगाज किया जाएगा, जिसमें अरकान काउंसिल से ताउन की गुजारिश है। सदर टाउन की यूसी नंबर 3 गार्डन आदम कंपाउंड में सीवरेज के मसाइल हल करवाने के लिए यूसी चेयरमैन मुतहरिक हो गए और मौके पर मशीनरी पहुंचाकर कामों का आगाज कर दिया। गार्डन के इलाके में कायम आदम कंपाउंड में सीवरेज का मसला हल करवाने के लिए यूसी चेयरमैन ने मशीनरी पहुंचा दी। लेबर काउंसलर से इलाका मकीनों की जानिब से शिकायत की गई थी, जिसके बाद यूसी चेयरमैन ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और अवामी तकलीफ को खात्मा करने के लिए फौरी इकदाम उठा लिए। यूसी फंड से जारी काम के जरिए सीवरेज लाइन की मरम्मत की जाएगी। यूसी चेयरमैन गुलफाम हैदर हाशमी कहते हैं, यूसी के पास सिर्फ 12 लाख का फंड होता है, जो तनख्वाहों और दीगर अखराजात के बाद 2-2.5 लाख ही बचता है, जिसमें गटर के ढक्कन और छोटे छोटे काम ही मुश्किल से हो सकते हैं। इन्होंने कहा, मैं इसी इलाके का रिहायशी हूँ और यहीं पर मेरा खानदान भी है, लिहाजा आवाम की तकलीफ का बखूबी अंदाजा है। यूसी वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स आवाम के बीच हैं। जो मसाइल हमारे इल्म में आते हैं, इसका हल निकालने की पूरी कोशिश होती है। इन्होंने कहा कि MC और सदर टाउन भी हमारा साथ दें। इस यूसी में तरक्याती कामों की बेइंतहा जरूरत है। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।